Hello kids, how are you? I hope you all are doing well. So welcome to today's maths class. Today we will do time. Time is the moment at which things happen. It is very important function in our daily life. और students के लिए तो ये बहुत important है. Even a minute, even a second is very important in a student's life. We get up from the bed at 6 o'clock in the morning and go to bed at 11 o'clock at night. In between getting up from the bed and going to bed, we do our daily work at a particular moment or time. The daily routine may look like, जैसे कि हम मॉर्निंग में 6 o'clock उठे एंड मॉर्निंग 7 o'clock कैचिंग स्कूल बस. 7 o'clock पे क्या किया? स्कूल बस ली और स्कूल गए. मॉर्निंग असेंबली कितनी होती है? 8 o'clock पे स्कूल असेंबली हो रही है. 8 o'clock to 2 o'clock in the afternoon हमने क्या किया? स्कूल में पढ़ाई की. While going through our daily routine, we use the word clock to express the time of the activities. Clock is the instrument of measuring time. It operates mechanically or electronically. Next is clock. Clock देखते हैं कैसे होता है. There are 12 equal division on a face of a clock. Clock में कितने होते हैं? 12 equal division होते हैं. 1 से लेकर 12 तक टोटल नंबर होते हैं. It has 3 hand. कितने हैंड होते हैं? 3 हैंड. कौन कौन से? The shorter hand, this one, ये पिंक वाला जो है वो क्या है? R hand. Longer hand, this blue one is minute hand. इसके अलावा क्लॉक में एक और हैंड होता है. The third hand is second hand. Now marking on graduation. 5 small graduation between 1 and 2, 2 and 3 illustrate the clock with a minute marking. जैसे कि 12 और 1 के बीच में या 1 और 2 के बीच में, 2 के या 3 के बीच में हम देखेंगे तो स्मॉल मार्किंग है. ये क्या किसको रिप्रेजेंट करती है? मिनट को. जैसे कि 1 मिनट, 2, 3, 4, 5 मिनट. सो स्मॉल मार्किंग आर 12 into 5 दैट इज इक्वल्स टू 60 मार्किंग. टोटल कितनी हो जाएगी? 5, 5, 5 करके टोटल हो जाएगी 5 into 12, 60 मार्किंग. Unit of time, second, minute and hour. Next is movement of hands. Clock के hand कैसे movement करते हैं? Movement start from the position marked 12. Second is the smallest unit of time. Smallest unit क्या होती है? Second. The second hand is the fastest of all 3 hands of a clock. It complete 1 round. It covers 60 small marking or graduation in 1 minute. Time taken to cover the distance from 1 to second mark is expressed in 1 minute. एक मार्क जब भी मूव करेगा तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट. 1 मिनट किसके इक्वल होता है? 60 seconds के. It is not necessary that all clock will have the second hand. The minute hand take 1 minute to move from one small graduation to another. If the minute hand point at 1 means it has got 5 small graduation. अगर एक उस पर मूव किया है दैट मीन्स उसने 5 स्मॉल ग्रेजुएशन मूव किया है, नहीं 5 मिनट मूव किया है. लाइक 1 से 2 पे गया है तो कितना मिनट मूव किया है? 5 मिनट्स. स्टार्टिंग फ्रॉम 12 सिमिलरली इट इज़ द पॉइंट ऑफ 2 मीन्स इट हैज़ गॉट 10 स्मॉल ग्रेजुएशन. देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर पॉइंटेड टू द मिनट हैंड बाय 5. अगर एक किया है दैट मीन्स 5, 2 किया है दैट मीन्स 10, 3 किया है तो 3 into 5, 15. तो इस तरीके से हमें मिनट्स को काउंट करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज टाइम इन AM एंड PM. वी नो दैट द आवर हैंड मेक अ कंप्लीट राउंड इन 12 आवर. एक पूरा राउंड लगाने में कितने होते हैं? 12 आवर्स लगते हैं. अ डे हैज़ 24 आवर्स सो द क्लॉक मेक्स 2 कंप्लीट राउंड. एक दिन में कितने राउंड कंप्लीट करती है? 2 राउंड, यानी 24 आवर. देयरफॉर द सेम पोजीशन ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक विल अपीयर ट्वाइस अ डे. मीन्स 7 o'clock अगर मॉर्निंग में है तो इवनिंग में भी होगा. 8 o'clock मॉर्निंग में है तो इवनिंग में भी होगा. एग्जाम्पल लेते हैं. देयर विल बी 7 o'clock इन द मॉर्निंग एंड 7 o'clock इन द इवनिंग.
there will be 10 o'clock in the morning and 10 o'clock in the evening. Similarly, from 1 to 12, all the numbers will figure out twice in a day. This adds to confusion. So we divide 24 hours into two periods, AM and PM. हमने अगर मॉर्निंग में 7 o'clock हो रहे हैं, इवनिंग में भी 7 o'clock, कैसे पहचानेंगे मॉर्निंग का है या इवनिंग का है? तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए क्या किया है, उसको AM एंड PM में डिवाइड किया है. AM मीन्स एंट मेरिडियन, यानी पास्ट 12 o'clock मिडनाइट एंड 12 o'clock आफ्टरनून. AM का मतलब क्या होता है? AM का मतलब है एंट मेरिडियन, यानी पास्ट 12 o'clock मिडनाइट. मिडनाइट में 12 o'clock से आफ्टरनून में 12 o'clock तक का जितना भी टाइम है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? AM से. PM का मीन्स होता है पोस्ट मेरिडियन, मीन्स 12 o'clock आफ्टरनून टू 12 o'clock मिडनाइट जो टाइम होगा वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? PM से. एग्जाम्पल 6 AM. AM मीन्स 12 o'clock मिडनाइट टू 12 o'clock मॉर्निंग, यानी ये किसका है? 6 o'clock इन द मॉर्निंग. 6 PM मीन्स 6 इन द इवनिंग. 1 AM. AM मीन्स रात के, 1 hour past midnight. 1 PM मीन्स 1 hour past afternoon. तो इस तरीके से अगर AM PM से हम क्या कर सकते हैं, टाइम को डिवाइड कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट मॉर्निंग टाइम, इवनिंग टाइम या आफ्टरनून, किस टाइम की बात कर रहे हैं. तो ये आपको प्रैक्टिस करना है. हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज रिलेशन ऑफ सेकेंड, मिनट, आवर एंड डे. The second hand of a clock moves the fastest. It covers 60 small marking or graduation in 1 minute. It moves 1 marking in 1 second. So to cover 60 small marking, it will take 60 seconds. Thus the 1 minute is equals to 60 seconds. 1 minute move करने में कितने होंगे? 60 seconds. Similarly, the minute hand take 1 minute to move from one marking to another. So to cover 60 marking, it will cover 60 minutes in 1 hour. 1 hour में कितने हो जाएंगे? टोटल 60 minutes. 1 hour मूव करने में टोटल 60 minutes मूव करना पड़ेगा. Thus the hour hand make a complete round in 12 hours. Hour hand takes 2 round in the day in 24 hours. एक दिन में 2 बार मूव करना होता है, यानी कि 12 + 12 यानी टोटल 24 आवर्स. सो 1 डे दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स. द कन्वर्जन ऑफ यूनिट, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. एग्जाम्पल देखते हैं. हाउ मैनी आवर्स आर देयर इन 10 डेज. हमें पता है 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो 10 डेज में कितने हो जाएंगे? 24 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 240 आवर्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल, कन्वर्ट 2 आवर इन मिनट. 2 आवर्स को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है. वी नो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट. तो 2 आवर कितने हो जाएंगे? 60 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 120 मिनट्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कन्वर्ट 5 मिनट इन सेकेंड. मिनट्स को करना है सेकेंड में कन्वर्ट. वी नो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. तो 5 मिनट क्या हो जाएंगे? 60 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 300 सेकेंड. तो इस तरीके से हम आवर्स को मिनट में, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम. टाइम में हम कैसे करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन? फर्स्ट स्टेप है मेक कॉलम्स फॉर आवर, मिनट एंड सेकेंड. आवर्स का अलग कॉलम होगा, मिनट का अलग होगा एंड सेकेंड्स का अलग अलग कॉलम होगा. फिल अप द सेम इन कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम एज गिवन. जो भी आपको गिवन है वो आपको आवर्स का आर में लिखना है, मिनट का मिनट में एंड सेकंड का सेकंड में. स्टार्ट एडिंग फ्रॉम राइट कॉलम. हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं. स्टेप 4 इज कैरी ओवर और बोरो एज रिक्वायर्ड. एग्जाम्पल लेते हैं. एड 4 आवर 20 मिनट एंड 5 आवर 30 मिनट्स. हमें ऐड करना है 4 आवर 20 मिनट एंड 5 आवर 30 मिनट. फर्स्ट क्या करेंगे? कॉलम पे अरेंज करेंगे. आवर्स को आर के उसमें और मिनट को मिनट के उसमें. आवर्स हो जाएगा 4 आवर एंड 20 मिनट, 5 आवर 30 मिनट. ऐड करेंगे सबसे पहले राइट हैंड साइड से मिनट को. 0 + 0 0, 2 + 3 5 हो जाएगा एंड 5 + 4 9. तो कितना आ जाएगा?
9 hours and 50 minutes। इस तरीके से हमने ऐड कर लिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐड 7 hour 40 minutes and 10 hour 50 minutes। अगेन फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कॉलम में अरेंज करेंगे आवर्स को आर के उसमें और मिनट्स को मिनट के उसमें। 7 hour 40 minutes, 10 hour 50 minute। नाउ वी विल ऐड, राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे मिनट से, 0 + 0 0, 5 + 4 कितना हो जाएगा 90। देखिए इसको हम यहाँ समझते हैं, 7 hour ये आर का हो जाएगा, ये मिनट का हो जाएगा। 7 hour 40 minutes एंड 10 hour 50 minutes। ऐड करना है, ये हो जाएगा 0, 5 + 4 9, देन 7 + 0 7 और 1 हो जाएगा 17। अब यहाँ पे कितने मिनट्स है 90 मिनट्स, 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे 60 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 1 आवर जो हमने सब्ट्रैक्ट किया हम क्या करेंगे यहाँ पे हो जाएंगे 30, और ये जो 60 मिनट है हम उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। 60 मिनट मीन्स 1 आवर, 1 आवर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएंगे 18। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 18 hours 30 minutes। अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 9 hour 22 minutes फ्रॉम 12 hour 35 minutes। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, आवर्स के नीचे आवर, मिनट के नीचे मिनट। सब्ट्रैक्ट किया 5 - 2 3, 3 - 2 1, 12 - 9 3, तो कितना आ गया 3 hours 13 minutes। एक और एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्ट 15 मिनट 50 सेकेंड फ्रॉम 34 मिनट एंड 15 सेकेंड्स। हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे हो जाएंगे आवर्स, यहाँ पे मिनट्स। अब यहाँ पे 15 मिनट्स में से 50 मिनट सब्ट्रैक्ट करने हैं, नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आवर्स में से बोरो करेंगे। 1 आवर दैट मीन्स 60 मिनट, तो हम यहाँ पे 60 ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों मिला के हो जाएगा 60 + 15 75। अब हम, और यहाँ पे 1 आवर कम हो गया यानी 33 हो गया। 75 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 0 5 आ जाएगा, 7 - 5 2, देन 3 - 5 नहीं हो सकता, 1 करेंगे यहाँ पे, ये 13 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। 13 - 5 हो जाएगा 8, 2 - 1 1, तो कितना आ जाएगा 18 hours 25 minutes। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, इसको यहाँ पे 1 मिनट ऐड किया, 75 हो गया, 75 में से 50 माइनस किया 25 हो गया, और यहाँ पे कितना बच गया 33, 33 में से 15 सब्ट्रैक्ट किया तो 18 मिनट्स 25 सेकेंड आ गया। नेक्स्ट हमारा है 24 आवर क्लॉक टाइम। द रेलवेज एयरलाइंस interstate bus services used unique timing system. Instead of dividing the time into AM and PM, the time is counted in 24 hours, mean it count from 1 to 24 hours. Here, time is expressed in digital form of 4 digits. The first 2 digit denote hour and the second 2 digit is for minutes. जो रेलवेज होता है या एयरलाइंस होती है उसमें हम क्या करते हैं, आवर को 12 आवर की बजाय 24 आवर क्लॉक में एक्सप्रेस करते हैं। उसमें क्या करते हैं, टाइम को 4 डिजिट में लिखते हैं। कैसे आगे समझेंगे उसको, एग्जाम्पल लेते हैं, 7 hour 24 minute इज रिटन एज 0724। यहाँ पे 7 क्या है आवर्स और 24 है मिनट्स। हाउ टू चेंज फ्रॉम 12 hour to 24 hour क्लॉक टाइम। फर्स्ट स्टेप क्या है, इफ द टाइम इज नाउ एट AM देन देयर इज नो चेंज एंड AM इज रिप्लेस्ड बाय आवर्स। कैसे, अगर 4:15 AM लिखा है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ओनली हम उसको क्या लिखेंगे 04:15 और पीछे AM को रिप्लेस कर देंगे R से। इफ द टाइम इज नाउ इन PM, अगर PM में टाइम गिवन है देन एड 12 टू द टाइम, रिप्लेस द PM विथ आवर्स। अगर हमें PM में गिवन है, सपोज 7 PM है, तब क्या करेंगे 12 ऐड करेंगे
तो 19 और पीछे क्या लगा देंगे पीएम की जगह आवर्स, तो 19 आवर्स हो जाएगा. So we can see that there is a particularly no confusion. If we say 1900 hours, we mean 7 o'clock in the evening, and 7 o'clock in the morning can be written as 700 hours. In order to convert the 24-hour clock time to 12-hour clock time, we have deduct 12 hours from the number and write PM with it. Example लेते हैं. Jet Airways has a flight from Delhi to Mumbai with originate from Delhi at 20:45 and reaches Mumbai at 12:50. What does it mean? हम एग्जाम्पल ले रहे हैं. ओरिजिनेट फ्रॉम दिल्ली टू, दिल्ली से कितने बजे ओरिजिनेट हुई 20:45. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डिडक्ट 12 आवर. इसको 12 आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे 12. डिडक्ट 12 फ्रॉम द नंबर, तो 20:45 में से हमने 12 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 8:45. अब क्या करेंगे, राइट PM विद इट. हम इसे लिखेंगे 8:45 PM. मुंबई कितने बजे पहुंची 12:50. 12:50 को 24 आवर की क्लॉक से 12 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 12 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10:50 और इसके पीछे क्या लगा देंगे PM, तो ये हो जाएगा 12:50 PM. तो हमें पता चल गया 8:45 PM पे दिल्ली से ओरिजिनेट हुई, दिल्ली से चली और पहुंचे कितने बजे 10:50 PM पे मुंबई. सो फॉर एनी नंबर विच क्रॉसेस 12 वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम द नंबर एंड राइट PM विद इट. अगर 12 से ज़्यादा का टाइम गिवन है आपको, 12 से आगे है तो क्या करेंगे 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे और PM लगाएंगे. नेक्स्ट इज टू चेंज फ्रॉम 24 आवर टू 12 आवर क्लॉक टाइम. इफ द गिवन टाइम इज इक्वल टू और लेस देन 12 आवर, अगर 12 के इक्वल है या उससे कम है देन देयर इज नो चेंज. रिप्लेस आवर्स विथ AM. जैसे कि 11 आवर्स है, 12 से कम है तो हम क्या करेंगे, ओनली आर को AM से रिप्लेस कर देंगे. इफ द टाइम इज मोर देन 12 आवर, अगर 12 आवर से ज़्यादा का टाइम है देन सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम द टाइम एंड रिप्लेस आर विथ PM. 12 से ज़्यादा का टाइम है तो हम क्या करेंगे 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे. जैसे कि 21:45 है तो हमने क्या किया 12 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हो गया 9:45 और पीछे लगा देंगे PM. नेक्स्ट इज टाइम ड्यूरेशन. Time duration means how much time it takes. So we have to have the starting time and finishing time to know the time duration. Time duration means कितना टाइम लगा किसी काम को करने में, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए किस टाइम पे हमने काम स्टार्ट किया और कब फिनिश किया. एक एग्जांपल लेते हैं. द स्कूल बस स्टार्टेड एट 7 AM फ्रॉम अनिल्स हाउस and reaches Anil school at 7:45 AM. How long does the bus take to reach school from Anil's residence? कितने बजे बस आई 7 o'clock पे स्टार्ट किया और पहुंची कब है 7:45 पे, तो कितना टाइम लगा 45 मिनट्स. द बस टेक 45 मिनट्स टू रीच स्कूल फ्रॉम अनिल्स होम. सो वी हैव टाइम ड्यूरेशन, फिनिशिंग टाइम माइनस स्टार्टिंग टाइम. कैसे निकालेंगे टाइम ड्यूरेशन, फिनिशिंग टाइम में से स्टार्टिंग टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे. नाउ सपोज वी नो द स्टार्टिंग टाइम एंड टाइम ड्यूरेशन, हाउ कैन वी फाइंड आउट फिनिशिंग टाइम. फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन डिराइव फिनिशिंग टाइम किसके इक्वल होगा, स्टार्टिंग टाइम प्लस टाइम ड्यूरेशन. एग्जाम्पल लेते हैं. सुनील स्टार्ट मॉर्निंग वॉक एट 600 आवर्स. ही वॉक 1 आवर. एट वॉट टाइम ही विल फिनिश दिस वॉक. फिनिशिंग टाइम क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग टाइम प्लस टाइम ड्यूरेशन. 6 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 आवर्स. टू नो द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन AM एंड PM वी हैव टू कन्वर्ट द टाइम इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम एंड देन सब्ट्रैक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं. फाइंड द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 10 AM एंड 5 PM. फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट 5 PM टू 24 आवर क्लॉक टाइम. उसके लिए क्या करेंगे 12 ऐड करेंगे. 5 + 12 दैट इज 17 आवर्स. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 10 AM को कन्वर्ट करेंगे पर वो ऑलरेडी AM में है तो उसको हम क्या करेंगे 10 आवर्स लिख देंगे. नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 - 10 दैट इज इक्वल्स टू 7 आवर्स. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे. ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज फाइंडिंग द डेज इन अ ईयर. वी नो देर आर 12 मंथ इन अ ईयर. एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं 12.
Which 4 month has 30 days? There are 30 days in month of April, June, September and November. Rest 7 month have 31 days. Month of February has 28 days. So total days in a year क्या हो जाएंगे? 4 months में होते 30 days तो हो जाएंगे 120 days. 7 month है 31 days के तो हो जाएंगे 270 days. एंड February एक महीना 28 डेज का है तो 28 डेज टोटल हो जाएंगे 365 डेज. देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर कितने हो जाएंगे? 365 डेज. नेक्स्ट इज लीप ईयर. When the number of the year is fully divisible by 4, the year is called leap year. जो भी ईयर 4 से फुली डिविजिबल होता है वो क्या कहलाता है? लीप ईयर. इन अ लीप ईयर देयर आर 29 डेज इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, एक्स्ट्रा 1 इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी. क्या हो जाएगा? लीप ईयर में जो फेब्रवरी होगी वो 28 की बजाय 29 डेज की होगी. सो इंस्टेड ऑफ 365 डेज इन अ ईयर द लीप ईयर विल हैव 1 डे एक्स्ट्रा. तो कितने हो जाएंगे? 366 डेज. Writing of date, month and year in short form. We first write the date followed by the month and year. हम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? Date, then month and then year. जैसे 15 जनवरी 1945 को कैसे लिखेंगे? Date क्या है? 15 जनवरी फर्स्ट मंथ तो 01, then year है 1945 तो ये हो जाएगा date, month and then year. Calculating the number of days between two dates. 2 डेट्स के बीच में कैसे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं. हाउ मैनी डेज आर देयर फ्रॉम 15 दिसंबर टू 15 जनवरी इन कैलेंडर ईयर. 15 दिसंबर से हमें क्या करना है? 15 जनवरी तक के डेज काउंट करने हैं. दिसंबर में कितने होते हैं? 31 डेज. सो 15 दिसंबर टू 31 दिसंबर विल बी 31 माइनस 15 टोटल कितने हो जाएंगे? 17 डेज. डेज ऑफ जनवरी क्या हो जाएंगे? 15 जनवरी तक है मतलब 15 डेज और हो गए तो टोटल कितने हो जाएंगे? दिसंबर के 17 डेज और जनवरी के 15 डेज टोटल हो जाएगा 32 डेज. नाउ इफ वी आस्क दैट हाउ मैनी डेज आर देयर इन बिटवीन 15 दिसंबर एंड 15 जनवरी. अभी हमें कहा था 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक अगर हमें इसके बीच का टाइम निकालना है कि इन दोनों के बीच कितना टाइम है तो क्या करेंगे? वी हैव टू एक्सक्लूड 15 जनवरी एंड 15 दिसंबर बिकॉज वी आर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डेज बिटवीन दीज डेज. तो क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे 16 जनवरी से 31 जनवरी तक तो टोटल हो जाएंगे 16 डेज. 1 जनवरी टू 14 जनवरी हो जाएंगे 14 डेज तो टोटल हो जाएंगे 30 डेज. Therefore, the number of days between 15 दिसंबर and 15 जनवरी कितने हो जाएंगे? टोटल 30 डेज. तो इस तरीके से आपको टाइम कैलकुलेट करना है. आई होप आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे. क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न.